ملتان میں سی پی او صادق علی نے سی ٹی او کے ہمراہ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے ٹی20 کرکٹ میچز کے لیے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس پی صدر، ایس ڈی پی او، دیگر افسران اس دوران ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ترجمان پولیس کا کہنا تھا کہ سی ٹی او نے سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ کرکٹ سیریز کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسٹیڈیم، روڈز اور کھلاڑیوں کی رہائش گاہوں کے گرد و نواح میں سرچ آپریشن ہو رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ شہر اولیا میں ستھرا پنجاب مہم غیر فعال نیو شاداب کالونی میں سیوریج کے ناکارہ سسٹم نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ پروگرام بنام سرکار میں اہل علاقہ نے انتظامیہ کو کھری کھری سنا دیں۔ ملتان انتظامیہ کی مبینہ نااہلی عوام کے لیے وبال جان بن گئی۔ یونین کونسل نمبر 3 نیو شاداب کالونی سیوریج کے ناقص سسٹم نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ نئی پائپ لائن بچھانے کے بعد جب روڈ مکمل ہوا تو پائپ لائن ناکارہ ہو گئی۔ گراؤنڈ فیلئر کا کام بھی 3 ماہ سے مکمل نہ ہو سکا۔ کام کرنے میں انتظامیہ سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پیدل نکلنا مشکل ہو گیا عوام کے لیے، یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ نمازی جب گزرتے ہیں تو ان کے پاؤں پانی میں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ پروگرام بنام سرکار میں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے ہمارے علاقے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گلیوں میں گندا پانی جمع ہونے سے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ گراؤنڈ فیلئر پڑ جانے سے کالونی تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اتنے دنوں سے اتنی پریشانی کا سامنا ہے کہ گھر میں آنا جانا، ہم نے خود آنا جانا ہوتا ہے گھر میں، تو اتنی پریشانی ہوتی ہے راستے میں کہ بہت زیادہ مشکلات سے ہمیں گزر کے نہ نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے، گھر سے باہر جائیں تو سارا پانی پانی، مسجد تک آتے آتے کپڑے خراب ہو جاتے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ آپس کے اختلافات ختم کر کے عوام کے بارے میں سوچیں اور عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ ٹیم بنام سرکار کے ساتھ رانا سلمان، روہی، ملتان۔ شہر اولیا میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام ہو گئے۔ سرکاری نرخ اور مارکیٹ ریٹ میں زمین آسمان کا فرق۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ ملتان میں مہنگائی کی شرح کم نہ ہو سکی، پھل اور سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے دور۔ مارکیٹ میں ادرک 700 اور لہسن 450 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں ادرک 560 اور لہسن 450 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں پیاز 210، ٹماٹر 170، ہری مرچ 150، شملہ مرچ 250، کریلا اور سبز دھنیا 200 روپے فی کلو ہے۔ سرکاری نرخ نامے میں پیاز 120، ٹماٹر 84 اور ہری مرچ 70 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ مارکیٹ میں ٹینڈے 300، گھیا توری 140، مٹر 500، بھنڈی 150، پھول گوبھی 140 اور بینگن 130 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ میں پپیتا 350، سیب اور انار 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ آلو بخارا 400، گرما 250 اور امرود 200 روپے فی کلو میں مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں۔ مارکیٹ میں گریپ فروٹ 100، شکری 80 اور کیلے 200 روپے فی درجن میں دستیاب ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ جتوئی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر پر سہولیات کا فقدان۔ سینٹر میں پینے کا پانی دستیاب ہے اور نہ ہی بیٹھنے کا کوئی مؤثر انتظام۔ مقامی انتظامیہ اپنی مدد آپ کے تحت سینٹر چلانے لگی۔ جتوئی میں بی آئی ایس پی کی مستحق خواتین کی رقوم کے حصول میں رول گئی۔ رقوم کی ترسیل کے لیے میونسپل کمیٹی جتوئی میں قائم مرکز پر سہولیات کا فقدان ہے۔ سینٹر میں پینے کا نہ صاف پانی ہے، نہ ہی بیٹھنے کا کوئی مناسب انتظام ہے۔ نیٹ ورک ایشوز کی وجہ سے بھی خواتین کو اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سینٹر انچارج کا کہنا تھا کہ کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں، نیٹ ورک ایشوز اور بینک کی طرف سے بر وقت رقم فراہم نہ کرنے پر سینٹر چلانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے جو کافی ساری چیزیں ہیں اس کے لیے بہتری کی ضرورت ہے۔ جیسے سیٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ جو ہے سیٹنگ ارینجمنٹ جو ہے سفیشینٹ ہونا چاہیے۔ پھر لا اینڈ آرڈر جو تھا وہ 2 دن سے نہیں تھا، تو اے سی صاحب سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے جو ہے آج پولیس کی ڈپلائمنٹ کی ہے، ایک لیڈی کانسٹیبل ہے، تاکہ جو ہے لائنز کو مینٹین کیا جائے۔ میں خود یہاں پر صبح 7:30 بجے سے موجود ہوں اس گراؤنڈ میں، جب کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے خود یہاں پر جو ہے سیٹیں لگوا کے تاکہ ایک جو ہے ردم بن جائے کام کے لیے، ریٹیلرز کے لیے بھی، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پیمنٹ کر سکیں۔
मॉनिटरिंग टीम इंचार्ज BISP हेडक्वार्टर इस्लामाबाद मोहम्मद सुहेल ने आला हुक्काम से अपील की है कि बैंक से रकूम की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ सेंटर पर बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ वजीर मलिक, रोही न्यूज़, जतोई। शहर उलिया में तजावुजात की भरमार। पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुजात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सड़क के खिलाफ रेहड़ी बानों का कब्जा। इंतजामिया की तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां सिर्फ कागजों तक महदूद हैं। तजावुजात माफिया का राज। पुराना शुजाबाद रोड के अतराफ रेडी बानों का कब्जा। तंग सड़क पर शहरियों का सफर करना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि स्कूल और शाम के वक्त सड़क पर काफी रश होता है। शाम को ड्यूटी से घर जाते हुए अक्सर लेट हो जाते हैं। म्युनिसिपल कमेटी इंतजामिया सिर्फ दफ्तरों तक महदूद है। शहरियों का कहना था कि एक तरफ तजावुजात और दूसरी तरफ टूटा हुआ रोड। इस रोड से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। इंतजामिया की नाअहली की वजह से तजावुजात की भरमार। तजावुजात के बायस रोड पर हादसा मामूल बन गए। हो गए 2.5 साल, ठीक है। तो जो साथ वाले आसपास वाले पहले अरसे के बैठे हुए हैं, शुरू से ही रोड की सेटिंग ऐसी है। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया तजावुजात के खिलाफ नोटिस ले। मुस्तकिल ऑपरेशन ही तजावुजात के खात्मे का हल है। कैमरामैन हसीब के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में हर तरफ तजावुजात की भरमार। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की कोशिशें भी राय कहाँ। ताजिरों ने इंतजामिया के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। बहावलपुर की सड़कें और बाजार तजावजात माफिया के निर्गे में हैं। कमिश्नर नादिर चट्ठा और डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने शहर से तजावजात का खात्मा करने के लिए ताजिरों के साथ कई मीटिंग्स की, मगर ताजिरों ने इस हवाले से इंतजामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। देखिए, ये शॉप से ज्यादा तो स्टॉल लगे हुए हैं, सड़क बिल्कुल कम हुई है, जिसकी वजह से अगर ये ज्यादा होगी तो मुसाफिर को कभी मुश्किल नहीं होगी। शहरियों का कहना है कि तजावजात के बायस बाजारों से गुजरना मुश्किल है। शहरियों ने तजावजात के खात्मा के हवाले से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग्स को कागजी कार्रवाई करार दे दिया। ये कागजी कार्रवाई होती है। मीटिंग के बाद एक मरतबा चक्कर लगाने के बाद दोबारा कोई भी नहीं आता। 64 फुट का ये रोड है और 4 फुट पर ट्रैफिक चल रहा है। बहुत बाजार से गुजरते हैं, बहुत तंगी होती है। सारी तजावजात की हुई है, हालांकि रोड 30-40 फुट खुला रोड है, बड़ी परेशानी के बाइस बनते हैं। खवातीन का भी कहना था कि शहर में तजावजात की भरमार है। लगता है सख्त इकदामात के बगैर शहर से तजावजात का खात्मा मुमकिन नहीं हो सकेगा। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। डेरा गाजी खान में शाह सिकंदर रोड टूट फूट का शिकार। खस्ता हाल सड़क राहगीरों और आसपास रहने वालों के लिए दर्द सर बन गई। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने और उनमें सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। डेरा गाजी खान में म्यूनिसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शाह सिकंदर रोड पर जगह जगह खड्डे हैं, ऊपर से इन खड्डों में गंदा बदबूदार पानी जमा रहता है। इस सूरत हाल ने राहगीरों, इलाका मकीनों और कारोबारी अफराद का जीना मुहाल कर रखा है। शहरी कहते हैं सड़क की खस्ता हाल सूरत हाल के बाइस आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। पानी जमा है, पानी निकाल लेते हैं, सीवरेज नहीं खोलते, बस वो बंद है। ना घर चलता है, ना बिजली के बिल पूरे होते हैं। हम तो जलील हो गए। कंप्लेन बहुत बारी की है, लेकिन पानी नहीं निकाला है। मरियम नवाज आई थी, पानी निकाला है, फिर कोई भी नहीं आ गया। ये पानी नहीं निकल रहा, ये कोई कारोबार नहीं होता। शहरियों का कहना था कि बच्चे स्कूल और नमाजी मसाजिद जाने से कासिर हैं। जब कोई हुकूमती शख्सियत डेरा गाजी खान आती है तो उसे इस सड़क की तरफ लेकर नहीं आते ताकि उनकी कारकर्दगी का पोल न खुल जाए। खस्ता हाल रोड की वजह से आसपास तमाम लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। शहरियों ने हाथ बुलंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और म्यूनिसिपल कारपोरेशन हुकाम के खिलाफ नारे भी लगाए। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डेरा गाजी खान। की तहसील पिपला में नौसरबाजों का बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। मुलजिमान ने सादा लोग खवातीन को करप्शन के केस में फंसा दिया। मुलजिमान ने पैसों राशन का झांसा देकर सैकड़ों खवातीन से बायोमेट्रिक ली। मियांवाली की तहसील पिपला में नौसरबाजों ने सादा लौ खवातीन को करप्शन के केस में फंसा दिया। लवाहिकीन का कहना था कि नवाई इलाका मूसा वाली के रिहायशी शाहनवाज और उसकी बीवी ने गरीब और नादार खवातीन को जमा किया और कहा कि एक NGO माली इमदाद दे रही है। उन्होंने डिवाइस पर अंगूठे लगवाए और पर्दे के बिना तस्वीरें भी बनवाई। मुलजमान का कहना था कि अभी 500 रुपए दिए जाएंगे, अगले माह 15,000 रुपए और राशन मिलेगा। इलाके का बंदा है शाहनवाज, वो उनका पहले से जानने वाला था उसके घर, और उसके घर उन्होंने कहा कि हमने इस इलाके की मदद करनी है, हम एक NGO की तरफ से आए हैं। उस शाहनवाज की बीवी जो है वो फिर मोहल्ले में घूमी और तमाम खवातीन को जो है उसने इकट्ठा किया उधर वहां पे। तो फिर उन्होंने खवातीन को बताया इस वक्त हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपको खर्चे के तौर पर 500 रुपए नकद दे रहे हैं। आइंदा माह आपको तकरीबन 15,000 रुपया हर महीने नकद मिलेगा और इसके साथ राशन भी मिलेगा। तो अनपढ़ और सादा खवातीन थी सर, वो उनके झांसे में आ गई।
लवाहिकीन का कहना है कि बायोमेट्रिक के 15 दिन बाद FIA की जानिब से परवीन बीबी, सकीना बीबी और कैसरा बीबी को नोटिस आ गया। नोटिस में लिखा था कि मज़कूरा खवातीन ने 44 लाख रुपए की ऑनलाइन करप्शन की है। खवातीन कहती हैं वो अनपढ़ हैं। उन्होंने समझा कि सच में कोई इमदाद दे रहा है। देहात है ना, सन समान पढ़े सन कोई समझ नहीं भाई सिमा निकल दिया जाके साना कने खर्चा 500 असां थोड़ी इमदाद देंदे पे ज़कात दे तरिए बथवन 15 देसूं बस ना राशन पानी देसूं उदी जनानी सन शाह निवाज दी सड़ के नेंदी रही है भाई जाओ मेरे घर पैसे देने पर नहीं देहाती जलान होनी सन उन्हें चंबे लाग देन तस्वीरें कर दियन सन नहीं पता 7.5 के फराड ऐसा कर साडे भी यार कीतने मेरे पुत्र चंबे लगा के देने तस्वीरें छिक दियने बे 500 रुपया मेरा तो जना मुथाजे उदे तोड़ घर गए उदे चंबे लगा के नायन उदी तस्वीर छिक गिनान 500 रुपया मंजे ते वांग दिता ने मुथाज। लवाहिकीन ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी मगर उन्होंने कहा कि ये उनके इख्तियारात में नहीं आता। लवाहिकीन के एहतजाज पर DPO ने मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का यकीन दिलाया, जिसके बाद लवाहिकीन ने एहतजाज मुअख्खर कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। गंदम और पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। प्रोग्राम बनाम सरकार में शहरियों ने हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। महंगाई आवाम की दुहाई। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। 30 से 40 हजार रुपए कमाने वाले के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। प्रोग्राम बनाम सरकार में आवाम ने हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। शहरियों का कहना था कि तामीराती सामान बहुत महंगा हो चुका है, मजदूर को मजदूरी करने के लिए कोई काम नहीं मिलता। हुकूमत एक चीज सस्ती करती है तो दूसरी चीज महंगी कर देती है। काम ही नहीं है, अब हफ्ता हो गया वेले बैठे हैं। क्या सीमेंट बजरी, सीमेंट सरिया, ये जो बिल्डिंग का मटेरियल है सब महंगा आसमान पे पहुंच गया। दूसरी जानिब रेलवे मुलाजमीन भी अपने डिपार्टमेंट पर बरस पड़े। कहते हैं वजीर आजम की तरफ से दिए जाने वाले रिलीफ रेलवे हुकाम देने से कासिर हैं। 20-25 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ। 5000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਕਰਾਇਆ। अवाम ने हुकूमत से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी के साथ शहरियों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। टीम बनाम सरकार के साथ राणा सलमान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। आशिकान रसूल घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए पुरजोश। शहरियों ने इस हवाले से खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। शहर ओलिया में जश्न ईद मिलादुन नबी को मजहबी अकीदत से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। आशिकान रसूल घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी करने स्टॉल्स पर पहुंच गए। स्टॉल्स पे झंडे, बैज और रंग बिरंगी लाइटें शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रहीं। ईद मिलादुन नबी मनाते हैं कि हमारे आका मौला हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह कायनात है, क्योंकि आप अगर इस दुनिया में तशरीफ़ न लाते तो खुदा शनासी यानी खुदा की पहचान तो दूर की बात है, हमारी अपनी पहचान भी नहीं थी। अब पूरी कायनात की पहचान हुजूर की वजह से हुई है। ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई अपने नबी के लिए। ये पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जितनी भी चिरागे हैं हमारे आका मौला हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही है। आशिकान रसूल कहते हैं कि हर साल आका की विलादत बासादत का महीना धूमधाम से मनाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी को अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए बच्चे बड़े सभी तैयारियों में मसरूफ हैं। जी सरकार पाक क़यामत का दिन है, खुशी का दिन है। हमारे सोने नबी पाक दुनिया में आए थे तो खुशी का ही दिन है, खुशी मनानी चाहिए इंसान को, तो हम खुशी मनाते हैं उनकी। जश्न ईद मिलादुन नबी पर आशिकान रसूल अपने अपने अंदाज में गली मोहल्लों, इमारतों और बाजारों को सजा रहे हैं। कैमरामैन आसिफ के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। शहर ओलिया में जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से रैलियों का आगाज कर दिया गया। अंजुमन गौसिया कादरी जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम सालाना खत्म नबूवत मिलाद रैली का इनेकाद। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही आशिकान रसूल रैलियां और महफिल नात के साथ लंगर और न्याज का एहतमाम करना शुरू कर देते हैं। मुल्तान में अंजुमन गौसिया कादरिया जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम खत्म नबूवत मिलाद रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मखदूम सैयद जुहेब गिलानी सज्जादा नशीन दरबार सखी नवाब ने की। सज्जादा नशीन का कहना था कि दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब
के गुनाहों को माफ फरमाए, पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए और हम सबको रबीउल अव्वल मनाने की सआदत अता फरमाए। आशिकाने रसूल का कहना था कि हमारे नबी को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को अकीदत और एहतराम से मनाते रहेंगे। आप देखें 12 रबीउल अव्वल को हर तरफ आशिकाने मुस्तफा की बहार होगी, गली कूचा मोहल्ला मोहल्ला पूरी दुनिया ही हुजूर के जश्न मना रही है। जैसे किसी ने क्या खूब कहा कि आका की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उम्मत मुस्लिमा रबीउल अव्वल के महीने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और मोहब्बत में महफिलों और लंगरों न्याज का एहतमाम करती रहती है। कैमरामैन इरफान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान।